السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ اگر میں کسی کے مردہ بدن پر قبضہ کر لوں تو بس ایک مخصوص وقت تک ہی یہ قبضہ قائم رہ سکتا ہے اور اس کے بعد خود بخود ختم ہو جائے گا۔ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، کبھی نہیں، پہلے میں نے یہ عمل کیا ہی نہیں۔ پھر تم نے ثنا کے بدن پر یہ عمل کیسے کیا؟ اس علم کا مجھے پتہ تھا، میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ تمہارے گم ہو جانے کے بعد میں ہسپتال میں تمہاری تلاش کرنے لگی اور آخر میں نے تمہیں وارڈ بوائے کے روپ میں دیکھ لیا۔ بس پھر میں تمہارے پیچھے لگ گئی اور میں نے پہلی بار ثنا کے بدن پر قبضہ جمایا۔ میرا خیال تھا کہ میں طویل عرصے تک ثنا بنی رہوں گی، لیکن پھر گزری رات کو اچانک مجھے ایک دم احساس ہوا کہ میں ثنا کے بدن سے نکل رہی ہوں۔ میں خود چونک پڑی تھی۔ رفتہ رفتہ میں اس کے بدن سے نکل گئی اور اس کا سڑا ہوا تعفن زدہ بدن نمایاں ہو گیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہ عمل زیادہ طویل نہیں ہوتا۔ میں نے پرخیال انداز میں کہا، اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتاؤ، اس وقت تمام لوگ تھک ہار کر سو گئے ہیں، میں مہیا کر سکتی ہوں۔ اس نے کہا، نہیں، اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، میری بھی نہیں۔ اور اس کی آواز میں محبوبیت تھی۔ میرا دم نکل گیا۔ اس کے لہجے کا مفہوم ظاہر تھا کہ میں کچھ نہ بول سکا تو اس نے دوبارہ کہا، بولو، کیوں نہیں؟ ایک بات کہوں تم سے؟ ہاں کہو۔ میں جانتی ہوں کہ میری قربت تمہارے لیے ایک مشکل کام ہے، لیکن یہ میری اصل ہے، اور اگر میری اصل تمہارے لیے قابل قبول نہیں تو معاف کرنا، میرے لیے اس سے دردناک بات اور کوئی نہیں۔ ہاں، ایک وعدہ تم سے کر سکتی ہوں۔ وہ رکی، پھر بولی، پوچھو گی نہیں کیا؟ نہیں پوچھوں گا۔ کیوں؟ اس لیے میں نے تمہاری اصل قبول کرنے سے انکار کب کیا ہے؟ میں نے جواب دیا، اور وہ وارفتہ ہو گئی۔ سوکھی ہڈیاں کی مالا میرے گلے کی زینت بن گئی۔ اس نے بڑی محبوبیت سے میری گردن میں باہیں نما چیز ڈال دی۔ میری گردن میں کھجلی ہونے لگی۔ دوسری صبح نہ جانے کب آنکھ کھلی۔ بھیانک رات کی نڈھال صبح کی حیثیت سے کروتی بہت پیاری تھی، لیکن میں نے اس کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں، لیکن وہ نظر نہیں آئی۔ اس کے بعد نیچے کی سن گن لی، لیکن کوئی آہٹ نہیں سنائی دی۔ پھر روشن دان سے باہر کا نظارہ کیا۔ پورا لان کارواں سے بھرا ہوا تھا۔ ثنا کے کل ہو رہے تھے، ایک سے ایک قیمتی کار موجود تھی، 5 اسٹار کل تھے۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ ابھی روشن دان سے باہر کی گہما گہمی کا جائزہ لے رہا تھا کہ پیچھے سے آہٹ سنائی دی اور میں اچھل پڑا۔ بدن نے پسینہ چھوڑ دیا، لیکن کوروتی کی آواز سنائی دی، میں ہوں عالی، ناشتہ لائی ہوں تمہارے لیے۔ اس نے کہا اور میرے سامنے ایک ٹرے لگا دی۔ ٹرے میں حلوہ، پوڑیاں اور سالن وغیرہ تھا۔ نیچے کوئی نہیں ہے، جلدی سے واش روم ہو آؤ۔ اور اس کے لہجے میں کسی محبت کرنے والی بیوی کا سا پیار تھا جس سے میں متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ نیچے آ کر میں نے ضروریات سے فراغت کی۔ یہ انیکسی ہمارے لیے پرسکون پناہ گاہ تھی۔ میں واپس پہنچا تو وہ میری منتظر تھی۔ میں کیسے تمہارا شکریہ ادا کروں کروتی؟ میں نے پوریاں چباتے ہوئے کہا۔ بتاؤ، وہ شوق لہجے میں بولی۔ ہاں بتاؤ، جیسے کرتے ہو، وہ مینیکیت انداز میں بولی اور کھل کھلا کر ہنس پڑی۔ وہ ہنس رہی تھی اور میں رو رہا تھا۔ بس آگے کیا کہوں؟ پوریاں کافی تھی، بچ گئیں، اور اس نے ایک سلیقہ مند بیوی کی طرح انہیں دوپہر کے لیے مخصوص کر دیا۔ اس کے بعد اس نے مجھے جو پیش کیا واقعی متاثر کن تھا۔ یہ آج کے اخبارات تھے۔ ارے واہ کروتی، یہ تم نے کیسے حاصل کیے؟ بتاؤ۔ جمگٹ لگا ہوا تھا پوڑیاں والوں کی دکان پر۔ میں چادر اوڑھ کر گئی تھی اور وہاں جا کر میں نے چادر اتار دی، اور اس کے بعد کروتی کہکے لگانے لگی۔ ہنستے ہوئے اس نے کہا، اور اس کے بعد گاہک تو بھاگے سو بھاگے ہی تھے۔ پوریاں والا بھی اٹھ کر ایسا بھاگا کہ سب کچھ بھول گیا۔ بس میں نے ضرورت کے مطابق پوریاں لیں اور چادر اوڑھ کر وہاں سے واپس چل پڑی۔ اس دوران میں نے اخبار والے کو بھی دیکھا، جو یہاں سے زیادہ دور نہیں، اور وہ فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا اخبار بیچ رہا تھا۔ میں نے یہاں آنے کے بعد پوریاں وغیرہ رکھی، اور مجھے اندازہ تھا کہ تم اخبارات میں اپنے بارے میں پڑھنے کا شوق رکھتے ہو۔ بس میں نے اخبار بھی اسی طرح حاصل کیے اور وہاں سے آ گئی۔
अरे वाह, कहाँ है अखबार? मैंने दिलचस्पी से कहा और करोती ने 3-4 अखबार लाकर मेरे सामने रख दिए। मैं बेसब्री से उन अखबारात पर झुक गया। पहले ही सफ़े पर जली सुर्खी के साथ लिखा था, शहर पर बुलाओं का हमला। कुछ खौफनाक बलाएं शहर में गर्दिश कर रही हैं। और उसके बाद बाकी खबर थी जिसे इस तरह लिखा गया था, हम आवाम को हरासा नहीं करना चाहते, हम खौफ व दहशत नहीं फैला रहे, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है कि हम उन्हें इस संगीन सूरत हाल से आगाह करें जो इस वक्त शहर को दरपेश है। ज़ीशान अली नामी एक फंक्शन राइटर जो पुरअसरार कहानियाँ लिखता था और तारीखी नावल भी, पता नहीं उसकी कहानियों का कोई किरदार कैसे ज़िंदा हो गया। लेकिन यह हकीकत है कि उसके अलावा और कुछ सोचा नहीं जा सकता कि या तो वो किरदार ज़ीशान अली के कब्ज़े में है या फिर ज़ीशान अली उस किरदार के कब्ज़े में है। ये किरदार एक खौफनाक वजूद है जो इंसानी ढांचे की शक्ल में मुतअद्दिर कार्रवाइयाँ करता फिर रहा है और उसे खौफनाक जिन्नाती कुव्वतें हासिल हैं। तफसील यूँ है कि कुछ अरसा पहले एक औरत एक बड़े डॉक्टर साहब से मिली और उसका अंदाज बेहद पुरअसरार था। डॉक्टर ने उसे उसकी बीमारी के बारे में पूछा तो उसने अपना ढका हुआ चेहरा खोल दिया। वो एक इंसानी ढांचा था, मुकम्मल ढांचा, जो बोल रहा था, बातें कर रहा था। और उसने कहा कि वो हादसे का शिकार होकर ये शक्ल इख्तियार कर गई है। उसकी आवाज़ नस्वानी थी, एक दिलकश और जवान औरत की आवाज़। और उसने डॉक्टर एहसान से दरख्वास्त की कि वो अपनी महारतों से काम लेकर उसका इलाज करें और उस जिस तरह भी बन पड़े उसके बदन का गोश्त वापस ले आया जाए। और उसने बताया कि किसी जहरीले महलूल के ज़रिए उसके एक दुश्मन ने उस वक़्त जब वो एक होटल में गुस्ल कर रही थी, वो महलूल पानी में मिलाया और उसका ये हाल कर दिया और उसके बदन का गोश्त गलकर बह गया और वो एक ढांचे की शक्ल इख्तियार कर गई। डॉक्टर ने उसे हमारे मुल्क के एक अजीम शान डॉक्टर कैसर पाशा के पास भेज दिया और उससे कहा कि वही उसका सही इलाज दरियाफ़त कर सकेंगे। अब उसके बाद सूरत हाल का पता नहीं चल सका कि डॉक्टर कैसर पाशा से उसका क्या मुज़ाकरात हुए, लेकिन उसने डॉक्टर कैसर पाशा को कत्ल कर दिया। लाजमी अमर है कि वो उसके जुनून का नतीजा था। और इससे पहले की एक कहानी इस कहानी से यूँ मुंसलिक हो जाती है कि होटल ताज महल में ज़ीशान अली एक कमरे में मुकीम हो गया और उसी कमरे में उसके साथ कोई और वजूद भी था जिसका कुछ पता नहीं चल सका। अलबत्ता पुलिस ने गहरी तफ्तीश के बाद ये ज़रूर मालूम कर लिया कि ज़ीशान अली एक इंतहाई खूबसूरत औरत के साथ होटल के उस कमरे में मुकीम हुआ। बाद में एक दिन उस कमरे से एक इंसानी ढांचा नमूदार हुआ और दौड़ता चला गया। होटल में भगदड़ मच गई थी और बहुत बुरी कैफियत हो गई थी। तफसीली मालूमात पर ज़ीशान अली को गिरफ़्तार कर लिया गया, लेकिन फिर लाकअप के पास एक ढांचा नमूदार हुआ और उसने लाकअप खोलकर ज़ीशान अली को रिहा करा लिया और उस दिन के बाद से ज़ीशान अली लापता है। फिर यूँ हुआ कि उस इंसानी ढांचे को मुख्तलिफ़ जगहों पर देखा गया। उस पर डॉक्टर कैसर पाशा के कत्ल का इल्ज़ाम था और उसका मुआवनकार ज़ीशान अली का माजी बुरा नहीं था और वो बस सीधा सादा कहानीकार था। लेकिन कहानियाँ इस तरह भी ज़िंदा हो जाती हैं, ये हर बार राइटर को नोट कर लेना चाहिए। कभी कभी उसके किरदार ज़िंदा होकर उसकी गर्दन पकड़ लेते हैं। अंदाज़ा यही है कि ज़ीशान अली उस पुरअसरार वजूद के शिकंजे में आ चुका है और उसके साथ जुराइम में मुलव्वस होने के लिए मजबूर है। हम ख़ास तौर से पुरअसरार कहानियाँ के इन लिखने वालों से मुखातब हैं जिनकी इंतहाई खूबसूरत कहानियाँ अवाम में बेहद मकबूल हैं, जैसे मोहतरम तायरा आसफ़, जो तमाशा फितरत को इस तरह पेश करती हैं कि इंसान उसके शहर में गिरफ़्तार होकर रह जाए, या फिर जनाब साहल आबरू जो अमाउस की रात की बेहाना कहानी पेश करते हैं, और फिर रिजवान अली सोमरू जो गुल हयात को इस तरह पेश करते हैं कि हैरत से मुंह खुले का खुला रह जाए। अलबत्ता ये गुल कभी कभी वो गुल खिलाता है कि इंसानी गुलगुला बनकर रह जाए। और फिर जनाब ज़रगाम महमूद जो नहले पर दहला है, कमाल के राइटर हैं। और एस इम्तियाज़ अहमद, बस उनके बारे में क्या कहा जाए। यूँ समझ लीजिए कि वह बहुत सी ज़िंदा रूहों के खालिक ही नहीं बल्कि ख़ुद भी इंतहाई माहिर रूहानियत मालूम होते हैं कि उनकी हर तहरीर बेमिसाल होती है। और हम वहीद साहब का तज़किरा ज़रूर करेंगे जिन्होंने पता नहीं कहाँ से रोलू का दरियाफ़त किया और जिसने लोगों को अपने शहर में जकड़ रखा है।
वहाँ मुल्क फ़हीम अरशाद बड़ी खूबसूरती से ज़ालिम आत्मा लेकर आए और ये ज़ालिम आत्मा करोती की शक्ल में आपके शहर में दंदनाती फिर रही है। बात एहसान सहर साहब की भी कमाल की है कि उन्होंने जो आंखें रोशन की, उन्होंने पुरअसरार तहरीरों की दुनिया में बड़ी रोशनी फैलाई, लेकिन मलिक एन ने कावश जिस मूर्ख को पकड़ कर लाए हैं वो सचमुच मूर्ख ही है, क्योंकि साजिद राजा की सफ़ेद मौत खौफ व दहशत से खून को रगों में मंजमद कर देती है। हाँ, आमर मलिक साहब ने एक बड़ी जिद्दत अख्तियार की कि उन्होंने रूहों का मिलन करा दिया, लेकिन नईम बुखारी आकाश की बेबस रूह की कहानी भी बड़ी दूर तक होती है। और फिर हम आ जाते हैं एम अलियास पर, जिन्होंने एक नागन को भी इश्क की लानत में गिरफ्तार कर दिया है। मनम असगर साहब ने मौत का बदला ले लिया और वजीही सहर ने तो चलिए लुटिया ही डबो दी, यानी उन्होंने खन्नास को कब्जे में कर लिया। ज़रूरियात शैतान में खन्नास की जो अहमियत है उससे सभी वाकिफ़ हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि बेचारा ज़ीशान अली इन्हीं खौफनाक तहरीरों के जाल में फंसकर कुरूती का शिकार हो गया, और कुरूती अपनी खोई हुई हैसियत पाने के लिए दहशतगर्दी करती फिर रही है। तो इसका तज़किरा करते हुए हम बता रहे थे कि वो ज़ीशान अली को लाकब से निकाल लाई और उसके बाद दोनों लापता हो गए। लेकिन पुरअसरार रूहों, या फिर जैसा कि ज़ीशान अली बयान करता है कि सदियों पुरानी ज़िंदा औरत जो न जाने कैसी कैसी पुरअसरार क़ुव्वतों की मालिक है, अपनी दहशतनाकी फैलाती फिर रही है। और ताज़ा तरीन वाक़या ये है कि एक बहुत ही मुक़्तदिर शख्सियत अब्दुल हकीम साहब की पोती सना एक अजीबोगरीब बीमारी का शिकार हो गई और बदनसीब बच्ची का एक हस्पताल में इंतकाल हो गया, लेकिन फिर वो ज़िंदा हालत में मिली और ज़ीशान अली उसके वार्ड बॉय की हैसियत से उन लोगों में शामिल हो गया और ये बेचारे खुशी खुशी सना को घर ले आए और यहाँ खुशियाँ मनाई गईं। लेकिन खासा वक्त गुजरने के बाद ये खुशियाँ अचानक ही दर्द गम में तब्दील हो गईं, क्योंकि सना नहीं थी बल्कि वो कुरूती की रूह थी जो उसके बदन से आज़ाद होकर फरार हो गई और सना का बदन एक मुर्दा बदन रह गया। ये हौलनाक कहानी बजाते खुद एक फंक्शन की हैसियत रखती थी, लेकिन उसका एक एक लफ्ज़ मेरे लिए बड़ा खौफनाक था। अखबार ने आखिर में वही लफ्ज़ लिखे थे जो ये हौलनाक कहानी सिर्फ कहानी ना समझी जाए, ये हकीकत है कि इस वक्त शहर एक ऐसी रूह की दस्ते सितम का शिकार है जो कहीं भी कुछ भी कर सकती है। इसलिए शहरियों को सरकारी तौर पर हदायत की जाती है कि वो ऐसे किसी इंसानी ढांचे से मुहतात रहें जो उन्हें कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। हुकूमत ने ये इजाज़त दी है कि उस ढांचे के ख़िलाफ़ कोई भी अमल किया जा सकता है और उसे जुर्म तस्वर नहीं किया जाएगा। अलबत्ता ज़ीशान अली अगर हाथ आ जाए तो उसे गिरफ़्तार करके पुलिस की तहवील में दे दिया जाए और उसे कोई जिस्मानी नुकसान ना पहुँचाया जाए, क्योंकि पुलिस उससे उस हौलनाक रूह के बारे में मालूमात हासिल करना चाहती है। पूरी खबर पढ़ने के बाद मैंने पेशानी से पसीना साफ़ किया। कुरूती शायद मेरी ही तरफ मतवज्जा थी। कहने लगी, अली हूँ। मैंने बेमुश्किल कहा, क्या लिखा है? हमारा कच्चा चट्ठा। मैंने एक गहरी सांस लेकर कहा, मुझे भी सुनाओ। क्या करोगी? सुनाओ ना। और उसने बड़े लाडले अंदाज में कहा और मैंने उसे तमाम तफसील पढ़कर सुनाई और उसे सुनकर खूब हंसी। तुम हंस रही हो? मैंने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा। बड़े मज़े की बातें हैं। और उसने कहा और मैंने बुरा समूह बनाकर दूसरा अखबार पढ़ा और उसमें आगे की कहानी थी। पहले अखबार की तरह मुख्तसर तफसील बताकर उसने इंकशाफ किया कि इस ढांचे नुमा पुरअसरार वजूद की तफ्तीश के लिए हर अमल किया गया। उधर एक होनहार पुलिस अफसर की पुरअसरार गुमशुदगी ने भी माहौल बड़ा सनसीखेज बना दिया था। इससे ज़्यादा सनसीखेज कैफियत उस वक़्त हुई जब उस किताब की गहराइयों को टटोला गया। सरकारी ज़राए ने हर मुमकिन कोशिश कर ली कि इस किताब को तोड़कर उसके नीचे कोई बेसमेंट तलाश किया जाए, ऐसी कोई जगह जहां से पुलिस कमिश्नर और उसके एक साथी को बाज़याब किया जा सके। लेकिन हर मुमकिन कोशिश कर ली गई, किताब तोड़ी नहीं जा सकी। फिर दूसरे ज़राए इख्तियार किए गए और किताब के नीचे कोई दूर से एक सुरंग बनाई गई जो बड़ी शदीद मेहनत के बाद किताब तक पहुंची। लेकिन हैरानी की बात यह है कि किताब के नीचे ज़मीन में कुछ नहीं, बस वो किताब ज़मीन पर टिकी हुई थी और वो किस चीज़ से बनाई गई है इसका कोई अंदाज़ा नहीं हो सका।
चुनाचा अब उस कोठी को सील कर दिया गया और बड़े बड़े माहिर तामीरात ये मशवरा कर रहे हैं कि किताब को ज़्यादा ताकतवर मशीनों के ज़रिए तोड़ा जाए और उसकी असलियत का पता लगाया जाए। मैंने ये तफसील भी कुरैती को पढ़कर सुनाई और फिर हंस पड़ी और मुझे उस पर शदीद गुस्सा आ रहा था। मुझ पर जो बीत रही थी वो तो मैं जानता था। मुझे यकीन था कि हमारे यहाँ की ज़हीन पुलिस लाजमी तौर पर कोई ना कोई हल तलाश कर लेगी। कुरैती तो कम वक्त गायब हो जाती थी, लेकिन तेरा क्या होगा कालिया, मेरे जहन में यही सोचे थी। वो कहने लगी, तुम्हें एक बात बताऊं अली, वो लोग किसी तौर पर किताब नहीं तोड़ सकेंगे क्योंकि वो तारीख का सरमाया है। पुरइसरार कुव्वतें उसे उनकी निगाहों से उजल कर देंगी, लेकिन वो पुरइसरार कुव्वतें भी उसे फना नहीं कर सकीं। और चौंका वो मेरे इल्म की किताब है, मेरा सारा तारीख का इल्म उसमें कैद है और मैंने इस तरह महफूज तरीके से उसे बनाया है कि तुम सोच नहीं सकते। 14 इंसानी जानें ज़ाया की हैं मैंने उस किताब की तामीर के लिए। कभी तुम्हें उसके बारे में तफसील बताऊंगी। क्या मतलब? मैंने खौफज़दा लहजे में कहा। हाँ ज़ीशान अली, 14 अफराद हलाक होते हैं उस किताब की ताबीर में। मैंने पेशानी से मसलते हुए कहा, कुरैती कभी कभी तो सच्ची बात है, मेरी दिमागी कुव्वतें ज़ाइल होने लगती हैं और मुझे यूँ लगता है कि मैं पागल हो जाऊँगा। क्यों? बात असल में यह है कि तुम इस कदर पुरइसरार कुव्वतों की मालिक हो, लेकिन तुम अपने बदन के गोश्त के हसूल के लिए खुद कुछ नहीं कर पाती। ज़ीशान अली, बड़ी मासूम बात कर रहे हो तुम। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मैं कोई माफूकल फितरत वजूद नहीं, एक ज़िंदा औरत हूँ, ज़िंदा किरदार हूँ, जो बस एक तरीके से जिसके बारे में तुम्हें बता चुकी हूँ और जिसमें सच्ची बात यह है कि मेरी जद्दोजहद शामिल नहीं थी। हयात अब्दी हासिल कर चुकी हूँ। बहुत सी ऐसी कहानियाँ मंजर आम पर आती हैं जिन्हें हम सिर्फ अख्तरा समझते हैं, लेकिन ज़ीशान, जब इस तरह के वाक़यात इंसान की निगाहों के सामने आते हैं तब वो इन अख्तरात पर गौर करने लगते हैं। क्या वो सच है? जैसे तुम राइडर हेग्स की शी को ले लो, वो शख्स भी तारीख का एक हिस्सा है और उसने ऐसे किरदार को तख्लीक किया जो कहीं दूर पहाड़ों में रहता है या रहती है और गुस्ले आतिश करके नई ज़िंदगी पा जाती है। लोग उसे फंक्शन समझते हैं, कहानी समझते हैं। उस कहानी को पता नहीं किस किस ने क्या क्या नाम दिए, लेकिन जो कुछ भी है कहीं ना कहीं से कोई खाका मिलता है उसका। खैर, मसला कहने का ये है कि वो किताब नहीं तोड़ी जा सकती और तोड़ कर भी कोई फ़ायदा ना होता उन्हें, क्योंकि ये बात तो तय है कि कमिश्नर और उसका साथी तारीख के किसी दौर में चले गए हैं और शायद वापस ना आ सकें। सवाल ये पैदा होता है कुरैती कि अब हम क्या करें? मैंने तुमसे कहा था ना कि जिस तरह उस लड़की के टेढ़े हाथ पांव सीधे हो गए, इसी तरह तुम भी ऐसा कोई दरवेश तलाश करो जो मेरे बदन के ज़ाया शुदा गोश्त को बहाल कर दे। और पता नहीं क्यों मुझे इस बात का यकीन है कि इस दौर की साइंस, या अगर साइंस ना सही तो वो इल्मियत जो बेहतर होती है, मेरा मतलब है कि जो सच्ची होती है और जिसका तल्लुक़ रूहानियत से होता है, किसी न किसी तरह मेरे वजूद की वापसी कर देगी। मैं खामोशी से सोचने लगा। फिर मैंने कहा, और मुझे तो सिर्फ ये ख़तरा है कि जो हंगामा आराई हो रही है और जिस तरह वो पुलिस ऑफिसर जिसका ताल्लुक CID से है हमारी तलाश कर रहा है, कहीं वो इस अनेक्सी का रुख ना कर ले, क्योंकि बहरहाल तुम 2-3 बार यहाँ से निकली भी हो और तुम्हें निकलना पड़ेगा। मैंने कहा, और शायद वो किसी सोच में डूब गई क्योंकि देर तक कुछ नहीं बोली थी। फिर उसने कहा, इसका भी कोई हल तलाश करेंगे। ज़ाहिर है कि हम एक तवील ज़िंदगी तो यहाँ नहीं गुजार सकते, कोई मुनासिब हल तलाश किया जाएगा। फिर एक बात कहूँ ज़ीशान? जी फरमाइए। मैंने कहा तो वो किसी कदर तंग कर बोली, देखो, मुझसे तंज़िया लहजे में गुफ्तगू मत किया करो, मैं खुद भी तो मुश्किल का शिकार हो गई हूँ और तुमसे बार बार ये बात कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता कि इस मुश्किल का शिकार मैं तुम्हारी वजह से हुई। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। बात तो उसकी सच ही थी, लेकिन बाबा, मैंने कब कहा था? मैं तो उस बुरे वक़्त को कोसता था जब मैंने गौतम बंसाली और उस बेहानक औरत का इंटरव्यू लेने के बारे में सोचा था और उसके असूल से ये समझा था कि मैं तारीख़ की कायनात में दिल हिला देने वाले राज अफशा करूँगा, लेकिन मेरा सारा वजूद खुद ही हिल कर रह गया। अचानक ही मेरे ज़हन में अपनी किताब का ख्याल आया। मैंने कहा, एक बात कहूँ कुरैती? जी जी फरमाइए। उसने भी मेरे ही अंदाज में कहा और हंस पड़ी। नहीं, संजीदगी से सुनो, मैं संजीदा हूँ। तुमने जिंदा सदियों का मसूदा कहाँ छुपाया था? वो चंद लम्हे साकत रही, फिर बोली, अरे हाँ, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। क्या?
जो खबरें तुमने मुझे सुनाई हैं और उनमें तुम्हारे मसूदे का कहीं जिक्र नहीं, यही ख्याल मेरे जहन भी आया था। मैंने कहा और बोली, मैंने उसे बहुत ही खुफिया जगह पर रखा है जहाँ से वो आसानी से किसी को हासिल नहीं हो सकता। काश मेरा मसूदा वापस मिल जाए। फिर वो खामोश हो गई और चंद लम्हात के बोली, मैं उसे जाकर तलाश करूँगी। तुम तनहा नहीं करोती, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। खबरों में सुना गया है कि वो इमारत सील कर दी गई है और आगे किसी कार्रवाई के लिए। हाँ, उसका मकसद है कि हम अगर किसी तरीके से उस इमारत में दाखिल हो जाएं तो ज़िंदा सदियों का मसूदा हमें मिल सकता है। क्यों न आज रात कोशिश की जाए, खुदा करे कि मेरा मसूदा मुझे मिल जाए। वैसे मैं तुम्हें बताऊं कि उस इमारत में दाखिल होने का एक खुफिया रास्ता भी है। ये तो बड़ी अच्छी बात है कोरोती, आज हम हर तरह का ख़तरा मोल लेंगे। वो मसूदा मेरे लिए ज़िंदगी की तरह है, मैं उसे ज़रूर हासिल करने की कोशिश करूँगा, मैंने कहा और कोरोती ने गर्दन हिला दी। बाकी वक्त जैसे भी गुजरा मेरे लिए बड़ा बेसब्री का वक्त था। और फिर जब रात के सन्नाटे गहरे हो गए और कोरोती ने मुझे हल्का फुल्का सा खाना खिला दिया जिसे वो बाआसानी कोठी के किचन से ले आती थी, और कोठी चौंका रंजो गम में डूबी हुई थी, इसलिए कोई ख़ास तहरीक नहीं होती थी। खाना खाने के बाद हम लोग एनेक्सी से बाहर निकले और बाहर जाने वाले रास्ते की जानब चल पड़े। हमें बाहर निकलने में कोई दिक्कत नहीं हुई थी, अलबत्ता शहर की सड़कों पर पुलिस पेट्रोलिंग जारी था, इसलिए हम तारीक रास्तों का सफ़र इख्तियार कर रहे थे। कोरोती की कोठी यहाँ से काफ़ी दूर थी, इसलिए वहाँ तक पहुँचने में काफ़ी वक्त लगा। रास्ते में कोरोती ने कहा, ज़ीशान, मेरी भगवान से प्रार्थना है कि तुम्हारी किताब का मसूदा तुम्हें मिल जाए, उसे लेकर यहीं वापस आओगे। तुम बताओ। मैं उसके बारे में सोच रही हूँ। वैसे इतना समय हमने यहाँ बिताया है, इस समय में हमने किसी को इस एनेक्सी की तरफ आते हुए नहीं देखा। इसका मतलब है कि ये उनके किसी काम की नहीं। हाँ, ये तो है, लेकिन हमारे काम तो की तो है ना। और हमने इतना समय यहाँ कितने सुकून से गुजारा। यहाँ से पूरी कोठी पर नज़र रखी जा सकती है। तुम्हारा मतलब है कि हम यहीं वापस आ जाएं? क्या जुर्म है? नहीं, कोई जुर्म नहीं। दूर से हमने कोठी पर नज़र दौड़ाई। गेट का बल्ब रोशन था। मेन गेट पर पुलिस की सील लगी हुई थी। कुछ फासले पर एक पुलिस कांस्टेबल बैठा ऊँघ रहा था। यहाँ तो सब ठीक है। हाँ, पुलिस वाला मौजूद था। उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें खुफिया रास्ते से अंदर ले जाऊंगी। हम खामोशी से मसूदा वहाँ से हासिल करेंगे और उसी रास्ते से वापस निकल आएंगे। मैंने कोई जवाब न दिया। कोरोती इमारत की पुश्त पर आई। इमारत के कुछ फासले पर उसने एक गटर के ढकने को हटाया और बड़े आराम से नीचे उतर गई। अरे, ये बरसों से सूखा पड़ा है, इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन कीड़े मकोड़े मैंने सब ख़त्म कर दिए थे। और नीचे आकर देखो कितना साफ़ शिफाफ है। तकरीबन सच कह रही थी और उसमें ज़रा बराबर बदबू भी नहीं थी। मैं उसका सहारा लेकर नीचे उतर गया। कमाल की जगह थी। गहराई चंद फुट से ज़्यादा नहीं थी, लेकिन कुशादगी खूब थी। अलबत्ता गहरा अंधेरा था। काश हम एक टार्च साथ ले आते, मैंने अंधेरे में ठोकर खाकर कहा। 1 मिनट, उसने कहा और ना जाने कहाँ से गटर लाइन में रोशनी फैल गई। मैंने हैरत से देखा, ये रोशनी उसके हाथों की उंगलियों से निकल रही थी। ये क्या? मेरे मुंह से बेख्तियार निकल गया। आ जाओ, अब नज़र आ रहा है। कोरोती की चहकती हुई आवाज़ सुनाई दी। हाँ, मगर बता चुकी हूँ, मैंने बहुत से ज्ञान हासिल किए हैं। मैं इतनी बेबस नहीं हूँ अली। बस मेरे साथ गौतम भंसाली ने जो कुछ किया उसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, और फिर अगर ये सब अपने रूप में करता तो भगवान की सौगंध मेरी बजाय उसका ये हाल होता। मैं उसका दाव उसी पर उलट देती। मेरी उंगलियों से जो रोशनी निकल रही है, ये मेरा ज्ञान है। मैं खामोश हो गया और मैं उसके पुर इसरार अलूम का कायल था। कुशादा गटर लाइन में हम कुछ और दूर आगे बढ़े और फिर वो एक जगह रुक गई। उसने रोशन उंगलियों का रुख ऊपर किया और मुझे दूसरा मेन होल नज़र आ गया। कोरोती ने हाथ ऊपर करके मेन होल के ढक्कन को ऊपर उठाया और ढक्कना अपनी जगह से हट गया। साफ हवा के झोंके अंदर आने लगे। कुछ लम्हे रुक कर हमने बाहर की आहटें सुनी और फिर कोरोती को ऊपर हाथ जमाकर अपना अस्तखवानी बदन को उठाने लगी और इत्मीनान से बाहर निकल गई। मेरे लिए भी ये मुश्किल नहीं था। खुली हवा में खड़े होकर हमने गहरी गहरी सांसें लीं। कोठी भाएं भाएं कर रही थे। कहीं से कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। किताब का जायज़ा लें, चलो, मैंने कहा और हम उस पुर इसरार कमरे में पहुंच गए। कमरे की हालत बहुत ख़राब थी। किताब अपनी जगह मौजूद थी और उसके आसपास कुछ कहा गया था।
وہ بے شک بہت کچھ تھا، لیکن کتاب کی آب و تاب میں کوئی کمی نہیں آئی۔ یہ محفوظ ہے، اور اگر انہوں نے اس عمارت کو بم سے اڑانے کی کوشش کی تو اس کتاب کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ ویسے ذیشان علی، میں اسے کہیں اور منتقل کر دوں گی۔ ہاں، کیسے؟ آرام سے، میں نے اسے تیار کیا ہے، میں سب کچھ کر سکتی ہوں، اس نے بڑے اعتماد سے کہا۔ ہم دیر تک آس پاس کا جائزہ لیتے رہے۔ کوروتی اس دوران خاموش رہی تھی، پھر اس نے کہا کہ آؤ۔ میں اسی کے پیچھے چل پڑا۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ کاش زندہ صدیوں کا مسودہ مل جائے۔ وہ بہت سی راستیں طے کر کے ایک بڑے خلا میں داخل ہو گئی۔ ہال کی ایک الماری کھول کر اس نے کچھ کیا تو الماری میں ایک خلا پیدا ہو گیا، اور اس نے اس خلا میں ہاتھ ڈالا اور چند لمحے کچھ تلاش کرتی رہی۔ پھر اس کی روندی ہوئی آواز سنائی دی، نہیں ہے۔ میرے پورے بدن میں ایک تشنج سا پیدا ہو گیا، دل جیسے رکنے لگا، اور اسی وقت انتہائی تیز مرکری روشنی سے ہال منور ہو گیا۔ ہم دونوں اس روشنی میں نہا گئے۔ میری آنکھیں بے اختیار بند ہو گئیں، اور ایک لمحے میں کچھ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن دوسرے لمحے بہت کچھ سمجھ میں آ گیا۔ نائلون کی انتہائی مضبوط رسی سے بنا ایک جال میرے اوپر گرا۔ کوروتی کی بھی ہلکی سی آواز سنائی دی تھی، پھر ایک بھاری آواز سنائی دی، تم دونوں پولیس کے نرغے میں ہو، کوئی حرکت کی تو گولیوں سے بھون دیے جاؤ گے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آنکھوں میں ابھی تک سرخ دائرے ناچ رہے تھے۔ پھر بہت سے بوٹوں کی آواز سنائی دی، اور پھر مجھے بری طرح دبوچ لیا گیا۔ بالکل ایسے لگا تھا جیسے کسی جنگلی درندے کو پکڑا جا رہا ہو۔ لے چلو، باہر لے چلو، اسی بھاری آواز نے کہا، اور مجھے دبوچنے والے مجھے جال سمیت باہر کھینچنے لگے۔ روشنی مدھم کر دی گئی تو میری آنکھیں دیکھنے کے قابل ہوئیں۔ میں نے چندھائی ہوئی آنکھوں سے اپنے اطراف کا جائزہ لیا۔ پولیس کی وردی میں بے شمار افراد آس پاس نظر آ رہے تھے۔ یہ سب بھاری اسلحہ سے لیس تھے، لیکن اور بھی کچھ نظر آیا۔ یہ کوروتی تھی، ایک خوفناک ڈھانچے کی شکل میں، اور اسے بھی میرے جیسے مضبوط جال میں جکڑ لیا گیا تھا، اور اس بار پولیس والے اس سے خوفزدہ نہیں تھے اور اسے دبوچے ہوئے تھے۔ ہم دونوں کو باہر لایا گیا۔ باہر بھی پولیس کی گاڑیوں سے روشنی کر دی گئی۔ بھاری آواز والا ایک اعلیٰ افسر تھا، بے حد شاندار شخصیت کا مالک۔ وہ ہماری طرف سے بہت محتاط تھے، اور انہیں الگ الگ گاڑیوں میں بٹھاؤ، اس نے حکم دیا، اور مجھے جار سمیت ایک پولیس موبائل میں بٹھایا اور کوروتی کو دوسرے موبائل میں لے جایا گیا۔ لیکن پولیس ہیڈ کوارٹر کے ایک حال نما کمرے میں ہم دونوں کو ایک ساتھ لے جایا گیا تھا۔ اس بار یہ ڈیوٹی بہت نڈر پولیس والوں کے سپرد کی گئی تھی، کیونکہ وہ کوروتی سے خوفزدہ نظر نہیں آ رہے تھے، جبکہ کوروتی اس وقت بھی جال میں لپٹی بے حد خوفناک نظر آ رہی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر تھے، اس لیے آپس میں کوئی بات نہیں کر پا رہے تھے۔ پھر کچھ دیر کے بعد ایک اور عمل ہوا۔ پولیس والوں کا ایک اور دستہ آیا اور کوروتی کو جار سمیت لے کر اس حال سے باہر نکل گیا۔ 4 پولیس والے اب بھی اس حال نما کمرے میں میری نگرانی پر مامور تھے۔ کوئی 1 گھنٹے کے بعد ایک اور پولیس کانسٹیبل اندر آیا، اور اس نے ان 4 سے کچھ کہا، اور ان میں 2 افراد اٹھ کر میرے پاس آ گئے۔ آپ کو ابھی اسی حال میں رہنا پڑے گا مسٹر ذیشان علی۔ جی، میں نے کہا۔ اس حال سے باہر نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، یعنی یہ سامنے والا دروازہ۔ دروازے کے دوسری طرف ساری رات ایک مسلح اسکواڈ ڈیوٹی دے گا، اور اسے ہدایت ہے آپ کی طرف سے ذرا بھی کوئی تحریک ہو تو آپ کو گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے۔ شکریہ، میں نے طویل سانس لے کر کہا۔ امید ہے کہ آپ عقل سے کام لیں گے۔ ضرور، بس ایک بات بتا دیں۔ جی فرمائیے۔ میرے ساتھی کو کہاں لے جایا گیا؟ اسے غسل دے کر دفنا دیا جائے گا۔ وہ اپنے پنجر کو لے کر کہاں بھاگتی پھرے گی؟ ایک پولیس والے نے پھر مزاح لہجے میں کہا۔ برا کریں گے آپ؟ کیوں؟ اور وہ اسی شرارت امیز لہجے میں بولا، وہ ہندو ہے، آپ اسے جلا دیں۔ میں نے کہا، اور اسی وقت دوسرے کانسٹیبل نے کہا، بس کرو رحمت خان، چل سمجھا دیا اسے، باقی اس کی تقدیر۔ وہ سب باہر نکل گئے، اور میں نے اس عجیب و غریب حال کا جائزہ لیا۔ موٹی مضبوط نائلون کی رسیوں سے بنا ہوا بمشکل تمام میں لیٹ سکا تھا، لیکن رسیاں بدن میں چبھ رہی تھی۔ اور پھر میں نے اس نئی آفتاب کے بارے میں سوچا۔ بہت برا ہوا تھا میرے ساتھ، بہت ہی منحوس ساعت تھی جب مجھے یہ دونوں یعنی گوتم بھنسالی اور کوروتی ملے تھے، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا تھا اس سے مجھے کیا حاصل ہوا۔ صدیوں کی تاریخ کچھ نہ دیکھ کر بھی لکھی جا سکتی تھی۔ سارے کام اسی طرح ہوتے ہیں، اور پوری دنیا کے سفر نامے ایک چائے خانے میں لکھے جاتے ہیں۔
तारीख के किसी भी गोशे में टांग अड़ा दो, तारीख के किसी भी दौर या किसी भी किरदार के साथ कोई भी रोमान अंगेज और रंगीन दास्तान नथी कर दो, सब चलता है। जिंदा सदियों को करोती के बगैर भी लिखी जा सकती थी और अब सब कुछ ख़त्म, पैसा हजम। लेकिन पुलिस ने बड़ा हैरत अंगेज कारनामा अंजाम दिया है। अब क्या होगा? अरे बाप रे, डॉक्टर कैसर शाह के कत्ल की मुजरम गिरफ्तार हुई है और मुझे उसका मुआवन करार दिया गया, फांसी या उम्र कैद। सारी रात इन्हीं सोचों में गुजरी। नींद भला कहाँ से आती, लेटता तो रस्सियाँ बदन में चुभने लगती। खुदा खुदा करके सुबह हुई, कोई परेशान हाल नहीं था। दिन को 10 बजे के करीब 6 पुलिस वाले अंदर आए, मुझे जाल से निकाला गया। हाथों में हथकड़ियाँ और पैरों में बेड़ियाँ पहनाई गईं, फिर हाल से बाहर लाया गया। मेरा खून खुश्क हो रहा था, यूँ लग रहा था कि जैसे तख्तेदार पर जा रहा हूँ।